careful. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड मॉर्निंग की आदत हो रखी है तो वही निकल यस रहा है। मैम। दिखाई नहीं दे रहे हो आप। हाँ, मैं दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो एक बारी। उन्होंने रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं करी है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो वो की वीडियो एक मिनट, कुछ सेटिंग होती है क्या ऐसी? नहीं, अभिषेक, you have to Yes. accept that video is being recorded. Please Where accept it is? that. You would कहाँ be से getting होगा? that this video is being recorded. Just accept it so that we can see your video. Okay मैम, I have sent this to you. Yeah, you've accepted that. चलो अब दीजिए आगे. But Now my can you my turn on screen your? is not visible. Why? आप एक बारी ऑफ करके ऑन करो. Okay मैम। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं लैपटॉप से कर रहा था, पता नहीं लैपटॉप में क्या दिक्कत है। आपके कैमरा के आगे कोई टेप या कुछ वो इट्स तो नहीं फाइन। लगी? रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करवा रही हूँ अभिषेक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो कर लेंगे रिकॉर्ड। ये तो इन फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे भी हम। नहीं, उससे वेट कोई करो। फर्क पड़ता है क्या? उससे कुछ? हाँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी ये रिकॉर्ड हो पाएगी। नहीं, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ मेरी स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं पता लग रहा। क्योंकि आपको अपना कैमरा भी ऑन करना होगा ना, उसमें नीचे जैसा आप अपना लैपटॉप पे देखोगे तो साइड में आ रहा होगा उसमें स्टॉप कैमरा वीडियो ऑन करके आ करने रहा है। के। हाँ, उसको ऑन करिए. नो। हाँ अभिषेक, वो आपकी वीडियो तो ऑन है. हाँ जी, हाँ जी, अब आ गया मैडम। एक्चुअल में वो ड्रॉइड कैम पे था। ओके, कैन यू सी मी ग्रेट. नाउ मैम? यस या प्लीज. ये ना जूम की हैबिट सबको होती है तो हम इस वजह से ही जूम में ले रहे हैं कि नहीं, जूम की ठीक है हैबिट मैम। होती है एज अ टीचर, तो दैट्स व्हाई। हाँ, आज कोरोना में सही यूज लगा किया देखो। था। हम्म हम लोगों ने ना कोरोना में ठीक। यूज किया था, उसके बाद नहीं किया। हाँ हाँ, वो इसी वजह से ना बॉस मतलब कैंडिडेट्स का ही था कि जूम में लो। नहीं, ठीक है जूम लेट्स मैम, स्टार्ट। इट्स परफेक्टली। हाँ, यस मैम। ओके। टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन अभिषेक। मैम, आई हैव completed my 10th and 12th from CBSE schools. Then I completed my graduation in 2005. Then after I pursued MCOM and then B.Ed. I completed that in 2011, and since then I have been teaching in a private school, CBSE affiliated school, and I am teaching accountancy and business study. ओके, सो योर बेसिक सब्जेक्ट इज योर मतलब योर मेन सब्जेक्ट। Accountancy and business study, ma'am. ओके, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी बोथ। Yes, ma'am. I am ओके teaching both these subjects. ओके ओके, you tell what is the difference between uh, theories of Henry Fayol and Treller? Ma'am, Taylor advocated his principles and techniques more towards the shop level workers, whereas Henry Fayol focused more on managerial levels. F.W. Taylor was more of a practitioner, and his personality was more of a practitioner, and Fayol is more of a scientist. Henry Fayol was a French mining engineer, and Taylor was a mechanical engineer. He was an American, I guess. And Okay, what is the formula of PV ratio? profit volume ratio, C by S into 100, contribution by sales into 100. Okay, what is contribution? Sales minus variable cost is contribution. Okay, what is the difference between margin of safety and BEP?
break even point. uh, Break even point is that point which at which a firm does not earn no profit no loss point, that is break even point. And margin of safety, I have read, ma'am, and margin of safety is the total sale minus break even sales. That is margin of safety. I mean, the amount of sales that is beyond Okay, what is break even angle sales. of incidence? Angle of incidence, there is a technique, a chart technique in break even point, and the point of intersection of between the total revenue and total cost, that intersection creates an angle of incidence. And the more this angle of incidence will be, the higher will be the profits. ओके, आप जर्नल एंट्री को पहली क्लास में बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? Journal entry, I would say, ma'am, ki it is the book of primary entry or original entry. And first of all, I will say that just like any other language, accounting is a language. Just you have learned the English alphabets A, B, C, D to master the language English. Similarly, accounting is also a language. And for that to master, we need to learn how to record the transaction in an accounting language. So journal is a book where we will use the knowledge of accounting rules, how to record them. And there are some rules that we will learn. Modern, traditional, different rules are there, ma'am. ओके, अभी आज का जो सिनेरियो है उसमें जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी करवाना सही है? जो 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जनरल एंट्री, आपको लगता है कि वो हटा देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? No, ma'am, it should be continued with, because from where we are beginning, a child must know the in-depth knowledge. Maybe there are softwares, Tally and others, those who have ओके, made the life much easier, सॉफ्टवेयर but टैली और अदर्स, आपने बोला सॉफ्टवेयर टैली और अदर्स, अदर्स में जैसे बिजी है मैम, बहुत बिजी पुराने स्टॉक हैं। के लिए है, स्टॉक के लिए है, वो स्टॉक मेंटेनेंस के लिए है अभी बिजी। अभी एक छोटा सोल प्रोप्राइटर कैसे मतलब अकाउंट्स को इजी करने के लिए यूज कर सकता है रूटीन में? आई हैव हर्ड ओनली मैम, टैली के बारे में ही सुना, और एक सैप के बारे में सुना तो है, बट आई डू नॉट नो मच अबाउट इट। यू हैव टू नो। यस। ओके, कॉमर्स में मैंने ये देखा है कि जैसे अकाउंट्स या बीएससी पढ़ाने वाले टीचर्स, अगर डेमो दिए जाए, दो फीमेल टीचर हैं और दो मेल टीचर हैं, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फीमेल को ज्यादा मतलब मेजोरिटी के साथ चूज करते हैं। क्या ऐसा है या फिर मेरी मिथ है? यू आर टॉकिंग अबाउट कैंडिडेट स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। यस यस, अगर एक फीमेल टीचर है और एक जेंट्स टीचर है और दोनों का डेमो दिलाया गया, और मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल को चूज करते हैं बच्चे, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, मैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से बात कर रही हूँ। तो ऐसा है या नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता मैम, बट मे बी एक एंगल से ये पॉसिबल हो सकता है कि दैट फीमेल बीइंग मोर सॉफ्ट देन द मेल। तो समवेयर कई बार बच्चे सोचते हैं कि मतलब अगर कोई लेडी पढ़ाएगी तो शी विल बी लिटिल बिट मोर लीनियंट विद देम। एंड एट टाइम्स जो मेल बॉयज होते हैं वो थोड़ा सा जेंट्स टीचर के साथ इतना थोड़ा सा घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है उनको। तो दैट मे बी अ फैक्टर, बट इफ अ मेल टीचर इज ऑल्सो good at his subject, and if he can make his subject interesting and lively, so I feel they will accept males also. ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएआई?
हेडक्वार्टर मुंबई में महेश। Okay. What is the full form of SEBI? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। What is difference between RTGS and uh, uh, NEFT? NEFT settle transactions in batches. There are 11 batches, and whereas RTGS real-time gross settlement, it settles the transaction as and when they take place. There is no bunching of the transaction. In minimum amount for RTGS required is 2 lakh. There is no such amount required in NEFT. Okay. That's all from my side. Sandeep Thank you, sir. ma'am. हेलो, गुड इवनिंग बेटा। तो Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Oh, sorry, sir. Good evening. ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि स्कूल में कई बार कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो टीचर्स में स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल रहते हैं, पूरे मंथ निकल जाता है पूरा उसमें। फिर जब टाइम आता है एग्ज़ाम का, तो जो टीचर्स होते हैं वो पीटी टीचर्स की क्लास हैं वो लेके और अपना सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं। तो आपके पास ऐसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर, बहुत सारे बच्चों का यही कंप्लेंट है कि हमारे जो पीटी टीचर की स्पोर्ट्स क्लास है वो टीचर ले ले रहे हैं, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? Sir, if the students are not willing to sacrifice their sports period, maybe I will try to make them stay in 0 periods before the assembly, because uh, I have also passed through this age and I can understand the feelings of the students. Game is equally important. So rather than forcing, I would take some other time for them to teach them. ओके, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाएंगे, मतलब जो उनका रेगुलर टाइम है उसमें तब उनको खिलाएंगे, और जो आपका पीटी टीचर है या फिर कोई और स्टाफ है जो आपका, वो किसी और टीचर की क्लास ले रहा है, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से? सर गेम्स भी सर जरूरी है। गेम्स भी सारा दिन खेलने पढ़ने के बाद गेम्स अगर वो एक पीरियड कर लेता है तो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा बच्चा। और सुबह में जैसे बच्चे प्रेयर्स वगैरह में जाते हैं तो उस समय 30 मिनट्स अगर हम 0 पीरियड अगर उनका लेके कुछ दिन के लिए अगर वो काम करवा दें तो आई थिंक। फिर आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रेयर टाइम है वो उसमें कुछ, उसमें कोई टीचिंग नहीं है, उसमें जो है वो टाइम वेस्ट है, 30 मिनट्स ऑफ। It is no, sir. It is there. It is just a temporary arrangement where if a child has missed some part of his syllabus because of the curricular activities, only for some days or for some time that can be arranged. And in sir, in class 11 and 12, so we have one more provision. Generally, the students of class 11 and 12 in private schools, they are they are allowed to go home after fifth. In some schools, in after fifth period, and in some schools after sixth also. So they can be made to stay back in seventh and eighth also. That can also be done. ओके, तो अभी हाल ही में एक रूल बना था कि 16 से कम साल उम्र के बच्चों को आप कोचिंग्स नहीं दे सकते फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप इसको कैसे देखते हैं? सर सर इसमें मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट का ये स्टेप कुछ हद तक ठीक है, because most of the students are relying on coaching these days, so their attention from the school has decreased. Now when a child is studying at the school teachers are trying their level best to update them, to give their 100%, but the mind of the student is such that they think that they will complete all these courses in at their coaching centers. So कहीं ना कहीं उनका ये जो लैकेडेसिकल थोड़ा सा एटीट्यूड हो गया स्कूल के प्रति, तो वो स्कूल से कम सीखना चाहते हैं और ट्यूशन के टीचर को ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। स्कूल टीचर की थोड़ी सी रिस्पेक्ट या उनके प्रति उनकी इम्पोर्टेंस को कम करता है। तो मे बी इस रीजन की वजह से सरकार ने
थोड़ा सा कम किया है। और थोड़ा स्कूल के बाद बच्चा खेलने के लिए जाता था पहले, स्कूल में इतना समय पढ़ने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करे जाके, फिर शाम को थोड़ा इवनिंग गेम करे, उसके बाद होमवर्क करे। बट नाउ द ट्रेंड हैज बिकम कि दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल देयर इज नो रेस्ट। Immediately after completing the school, the students are rushing towards their coaching centers. So this has added a pressure on them, due to which their social life has reduced a little bit. तो इससे हमने देखा है कि एक डेमो स्कूलिंग का कल्चर भी बहुत बड़ा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो टैकल नहीं कर पाता इस चीज़ के लिए तो वो डेमो स्कूल ज्वाइन कर लेता है। ऐसे एज सच जो छोटे स्कूल होते हैं किसी भी टाउन में, और उसमें वो डेमो स्कूल ज्वाइन करके फिर वो कोचिंग अपनी कोचिंग को वो रहता है। ऐसे वो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को भी चूज करते हैं फॉर डेमो स्कूलिंग। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, this is a very wrong tradition, non-attending, because school is not just a place of learning, academics. It is much, it's much more than that. बच्चा socializing सीखता है, हाउ टू डील विद द पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है। और अबव ऑल एक बच्चा स्कूल में जो सबसे बड़ी चीज सीखता है सर, हाउ टू हैंडल फेल्योर, बिकॉज यू कैन नॉट सक्सीड इन ऑल लेसन्स ऑफ योर लाइफ। बच्चा स्कूल में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा फोर्थ भी आएगा, कभी और नीचे भी रैंक आएगी। तो एक बच्चे के अंदर एक्सेप्टेंस आएगा कि उसको हमेशा वो जीत नहीं सकता है, तो फेलियर को हैंडल करना सीखता है। को करिकुलर एक्टिविटीज में वो टीम वर्क सीखता है कि कैसे आप लाइफ में हर बैटल में आप अकेले नहीं जीत सकते, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो डांसिंग है चाहे वो सिंगिंग है। तो एक अच्छा सिटीजन बनाना एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में, और स्कूल में वो सब चीजें अवेलेबल हैं जो जिससे वो एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो आई बिलीव दिस ट्रेडिशन ऑफ सेंडिंग द स्कूल्स फॉर नॉन अटेंडिंग, इट इज वेरी सीरियस हैजर्ड आई वुड से। ओके, तो आज the last question from my side. How do you incorporate parents into school curriculum, into commerce? सर पेरेंटिंग तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स हैं दे आर not that much aware about the subjects. Their role can be increased in monitoring of the wards more, where regular parent teacher meeting can be held to discuss the progress of the child. And in adolescence there is also a possibility where a child is distracted due to several reasons, opposite sex attraction and all. If the parents and teacher they club together and they discuss with each other, they find a way out to handle that, definitely it will add some pressure on the student। वो बच्चे के ऊपर एक मोरल प्रेशर रहेगा कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर रेगुलरली मेरे पे वॉच बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग का रोल और बढ़ा करके पेरेंट्स को इन क्लब इन्वॉल्व किया जा सकता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सर। थैंक यू। प्रियंका मैम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग मैम। मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, राइट? यस मैम। और किसी सिनेरियो में बच्चों को आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, तब आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि कुछ मिस्चीवियस बच्चे भी होते हैं, आवाज आ रही होती है पर बोलते हैं नहीं आ रही है। हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? मैम इसमें सबसे पहले तो टीचर को टेक्निकली थोड़ा साउंड होना पड़ेगा। आई फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन आई यूज्ड टू कंडक्ट दीज क्लासेस। क्या होता था कि जो बच्चे थे वो क्लास का लिंक किसी और नोटोरियस एलिमेंट्स को भेज देते थे, एंड वो बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, और वो बच्चे ज्वाइन करके अलग अलग तरीकों से डिस्टर्ब करते हैं और क्लास को मतलब करते हैं खराब। तो उसमें हमें टेक्निकली थोड़ा साउंड होना पड़ेगा, उसमें हमें एंट्री का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, उसमें मैसेजेस को एडमिनिस्ट्रेटर ही अलाउ करे, मतलब
दूसरों के मैसेज ना आ पाए, इस तरह से हमें सेटिंग्स में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर if there is a technical glitch, so that should also be looked into. Maybe the child may be genuine, so we may ask the others if I am audible to them also or not. If everyone is giving the same response, so then we have to see to the technical side, otherwise उनको फिर वहीं रोकना पड़ेगा। Fair enough. Imagine I'm a student and you are taking my class for the first time. I'm an 11th grader, okay? And you're Yes, ma'am. explaining me the concept of profit and loss account. How would you do that? Ma'am, profit and loss account actually is the end point of the accounting process. So I am Okay. assuming that recording classifying has already been taught. Now we will say that this is the basic purpose for we have started accounting, because every businessman want to know how much the profit has been earned or if the business has incurred losses. So प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिखाने के लिए हम उनको थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ भी लेके जाएंगे कि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि हमें क्लास में ही इसको सीखना है, ये तो आप डेली लाइफ में भी करते आ रहे हैं। एंड योर मदर फादर prepares this kind of statement in routine at their home कि how much income they are generating in a month and how much they are spending on food, education. So the difference between the incomes generated and the expenses incurred is income. So the similar way this principle can be applied to the business also. There are number of sources of incomes like sale of goods, services, interest received, commission received, and number of expenses as well. So we will prepare a statement where incomes will be recorded on one side and expenses will be recorded on the other side, and their difference will be taken as profit. Okay. What apps, technologies, techniques would you now incorporate in business studies? While teaching business studies, do you think there is a requirement, or these are just fancy names that have been included, or they're just jargons? Or do you agree with the traditional method? Ma'am, chalk and board method is no more effective these days. Technology has come to a big aid to the students. If the classroom lectures are supplemented by the technology, like several platforms are there, Edicom and Extra Marks. So along with the oral lectures, if we supplement it with the videos and pictures and images, that has a lasting impact on the memory of a child. So they will be shifted from rote learning to memorizing and developing analytical skills. So saying this ki technology is futile is it's not the right thing. It actually is helping the student big time these days. And it's only it has become possible only because of the technology. Now a child sitting in one corner of the country can have access to good teachers sitting at the different parts of the country. So यही कहना चाहूँगा। Considering the lack of infrastructure schools still have, how would you introduce technology to your students? First of all, तो मैम इसमें स्कूल का रोल, first of all we have to see how much the school is financially sound. If the school is sound enough to provide these kind of amenities, so definitely we'll urge the management and request them to install such gadgets at the school level. On other side, if the school is not that much sound economically, then we have to make adjustments. Like we can bring charts, we can bring different models at times, because mobile is with everyone, so we can bring the mobile also at times. So these kind of gadgets can be used to make the teaching more effective.
All right. So this was it from my side. Let's go Thank for you, the ma'am. final review to Nishu ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. एक तो बेटा फर्स्ट पॉइंट, आपको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुरू में बता रहे हो ना, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करो, थोड़ा समराइज कैसे करोगे आप। जैसे मतलब ऑब्वियसली यहाँ तक आए तो कहीं ना कहीं आइडिया है कि क्या किया है, समझ रहे हो कि बीकॉम, एमकॉम, बीएड और एचटेट, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि ये बेसिक क्वालिफिकेशन थी इस एग्जाम की। ठीक है, तो वो ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का समराइज कर दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में ना थोड़ा बोरियत फील हो रहा था आज मुझे, तो हल्का सा छोटा कर लो। दूसरा, Yes, अगर ma'am. एज कम्पेयर टू वो बता रहे हो उसको लंबा कर रहे हो, उसको छोटा करके ये बताओ कि आप टीचिंग में कैसे आए, समझ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या यू हैव एक्सपीरियंस मैनी ईयर्स। ठीक है, ये चीज बता सकते हो, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं पता है अभिषेक क्या होता है, वो 8 मिनट या 7 मिनट, क्योंकि बेटा हम तो आपको शायद 15 मिनट भी दे रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा उसमें। Exactly, ma'am. तो हो सकता है आप पहले कैंडिडेट हो या लास्ट कैंडिडेट हो, तो आपको ये सोचना है कि अगर मेरे को 5 मिनट भी मिले तो मैं ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को क्या समझा सकता हूँ। ये वो वाली सिचुएशन है कि घर से भागना है, आग लग रही है और क्या उठा रहे हो लास्ट में। तो आपको वही चीज दिमाग में लेके चलना है कि मेरे पास सिर्फ ये 5 मिनट है, जिसको मैं बताकर इनका या तो आज नौकरी जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जितना मतलब कम बोल के अपने आप को ज्यादा डिफाइन कर सको वो करना। तो ये कहीं ना कहीं उनको आइडिया, उनको पता है कि आप में वो चीजें हैं, तो थोड़ा सा बस ये मेरा ये बीकॉम और ये है और ये, फिर उसके बाद बस टीचिंग का बताओ कि सर मैंने ये प्राइवेट में या ऐसे इससे पहले ये एग्जाम क्लियर करा, या केवीएस दिया, एनवीएस दिया, कुछ भी दिया। फिर आपसे सीधा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा ही आप ये लेके आएंगे ना केवीएस, एनवीएस या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे, तो वो अगर आपने एग्जाम दिया है तो क्यों नहीं हुआ, तो मतलब कहीं भी उस चीजों में झूठ मत बोलना। एचपीएससी ही क्यों चूज करा, क्योंकि वही जो आपका आंसर, वो आंसर सही होते हैं आपके, बट आप कैसे आओगे उस तक, वो रास्ता बता रही हूँ मैं आपको आज। ठीक है, Yes, उसको ma'am. जैसे explain करोगे, ये बीच में थोड़ा सा ये डालोगे ना इंटरेस्टिंग वे, अगर मुझे इंटरेस्ट आ गया ना, सामने वाले को भी आएगा, वो आपको सुनना पसंद करेंगे। और अगर आपका Yes, ma'am. इंटरव्यू छोटा है, इट मीन्स कोई नहीं सुन रहा है आपको। ठीक है, फिर बेटा जो आपका इंटरव्यू लेंगे ना, वो प्रोफेसर्स होंगे। प्रोफेसर्स का फेवरेट होता है, अभिषेक सच बता रही हूँ मैं, अगर मैं भी हूँ कभी भी इंटरव्यू लिए है मैंने, फेवरेट होता है एफएम। एफएम को आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको उसके, आज मैं देखा है कि वो पीछे का यहाँ से याद आ रहा था, यहाँ नहीं रखा था, समझ रहे हो आपने एफएम, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ाया भी नहीं है, तो वो पीछे का था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोट्स हैं वो 10 पेजेस में, ज्यादा बुक खोल के ये नहीं उसका रट्टा मार लेना, थोड़े से समराइज वे में, या तो वीडियोस देख लो जैसे एफएम की कोई पढ़ी होगी, या फिर वीडियो में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करो, कुछ नोट्स पढ़े हैं तो ठीक है, वरना मुझे बोल दो, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, एफएम को रीड कर लो, सिर्फ उनका मतलब वो थोड़ा आइडिया तो है ही, क्योंकि पढ़ा है कभी ना कभी, तो थोड़े फॉर्मूलाज जैसे ये कंट्रीब्यूशन, ये सब बेसिक वाला ठीक था, जो वो बीईपी, ये उनके फेवरेट होते हैं बेटा, पूछेंगे वो रेशो, और ये फेवरेट है। BEP, ma'am, ये cost volume profit relations you are talking about. हाँ हाँ, ये वाले समझ रहे हो, Yes, ये ma'am. कैपिटल वेस्टिंग चैप्टर और डिविडेंड, ये उनके फेवरेट होते हैं, वो आपसे वोल्टर गोल्डन ये पूछेंगे। ठीक है, I, अगर मतलब IRR, NPV ये वाले बोल रहे हैं ना? हाँ एनपीवी एग्जैक्टली, वो सारे उनके मॉडल्स, कैपिटल बस्टिंग के, डिविडेंड के, ये डिविडेंड पॉलिसी वाला और ये वाला नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। वो सीधा सा लाइन उठाएंगे और आपके मतलब सीधा दूसरे तीसरे, उनको पता है आप बीएससी और अकाउंट्स क्योंकि 11 12 के टच में हो, तो आप लोगों को रट्टा मिलेगा, वो जाएंगे उधर। जैसे ही आप पे दो चीजों से वार करेंगे, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग और एक एफएम, उनको मत छोड़, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी नहीं छोड़ना है। उनका जो बेसिक बेसिक टर्म्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग से पूछेंगे, एफएम से लिखवा लेना, और आपको याद आऊंगी मैं वहां पर। फिर उसके बाद ये हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इधर से बनाया, थोड़ा ये पढ़ लेना। बाकी जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है और बाकी, उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल वहां से नहीं हारोगे आप, इधर वाला थोड़ा सा कर लेना, बाकी मेरी तरफ से सब सही है। ठीक है, तो एफएम पढ़ना Yes, है ma'am. थोड़ा, और कॉस्ट पढ़नी है। अकाउंट्स और बीएसटी ठीक है आपकी, अच्छी है। ठीक है, और नहीं आए तो वो सही है, और बाकी सारी चीजें आप सही से हैंडल कर रहे हो, बस ये दो चीजों पे काम। एक अपना जो शुरू का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने बताया 5 मिनट में कैसे समराइज करोगे, अच्छी चीज बताओ, ताकि उनको पता चले हम क्यों ले। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आपको ही क्यों चूज करें, सारे आपके जितने क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं, आपको ही क्यों चूज करें। तो थोड़े अपने वो स्ट्रेंथ वाली घुमा के स्ट्रेंथ बताते, इस वजह से इस वजह से, तो वो अकाउंट्स का ले Yes, सकते ma'am. हो। और एक ना अकाउंट्स के आजकल जो सच में सॉफ्टवेयर यूज करे जा रहे हैं नए नए फोन में, हम लोगों को पता होना चाहिए, आपने
कम से कम 10-15 ऐसे वो लिखने हैं अभी इस वीडियो के बाद ही, मतलब इस इंट्रोडक्शन के बाद ही 15 ऐसी वो लिखनी है साइट्स जहाँ पे हम लोग ये बना रहे हैं आजकल अकाउंट्स, जर्नल एंट्री, और जिनका यूज कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइक खाता बुक। हाँ, जैसे बहुत सारी हो गई अब तो, जैसे मैम ने बताया खाता बुक, Yes, ma'am. ऐसे आप देखोगे और एक आदमी को यूज करके देखना, क्योंकि बेटा देखो जैसे आप हो ना ऐसे ही और बाकी मिलेंगे, उनको बीएससी अकाउंट्स आता है, लेकिन जो सच में एज अ टीचर हमें ये चीजें आनी चाहिए, हमें ही नहीं आएंगे हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें Exactly. कि हाँ सर मैंने, और यूज करोगे तो आपको उसका पता भी होगा किस कोने में क्या रहता है, क्या पता अगर जैसे ही आपने बोला तो वो अंदर जाके टीचर पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा एक आधे कुछ यूज कर लेना। और ये सारी चीजें, और एक चीज और थी जो मैंने नोटिस करी थी, हाँ, एक ना टैली जैसे बोल रहे हो तो वो टैली से क्वेश्चन पुट कर लेंगे। टैली आपने बहुत मतलब ऐसे बोला, सब बच्चे बोलते हैं, तो हो सकता है कि अगर टैली बोला तो क्वेश्चन पुट कर ले, तो थोड़ा सा ऐसा करना है, ग्रुप में नाम लेना ताकि किसी एक पर्टिकुलर को चूज करके क्वेश्चन ना पूछे, समझ रहे हो, क्योंकि टैली बहुत पुराना है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी पता होता है, हम लोगों को भी जैसे वही हो पता है कि इसमें ये है और इनबिल्ट ये है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा पूछ ले, फिर कहेंगे अच्छा वो आप तो टैली भी नहीं जानते, समझ रहे हो? तो वो ही बोलना, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठेगा वहां पर। और Yes, ma'am. एफएम और पोस्टिंग को, मतलब मैं कहूंगी इन दीज डेज आपको पोस्टिंग और एफएम पे बढ़िया काम करना है, फॉर्मूलाज में भी और वैसे भी, ताकि इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली उठने वाले हैं, ठीक है। Yes, अब ma'am. I will संदीप, work on these two subjects, ma'am. हाँ, संदीप सर को बोल, संदीप सर प्लीज। जी हेलो। हाँ, तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो आपने बोला कि मॉर्निंग असेंबली टाइम पे करवा लेना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपने पीयर्स से, अपने जो बाकी टीचर्स हैं उनसे बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल कुरिकुलम में वो भी चीज़ किसी न किसी काम के लिए डाली गई है, तो आप सीधा उस पर जाके ना ना बोल के अपने टीचर से ही बात कर लेना। दूसरा था कि Yes, जो गवर्नमेंट 16 ईयर वाला था, कि वो एक जो उसका पीछे जो वाई रीजन है वो उसको आप कहीं थोड़ा थोड़ा लैग कर रहे थे, मतलब उसको इलेबोरेट करते टाइम उसको बोल देना कि क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट्स और ये जो प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हो रखा है आजकल, तो इसको लेके एक डेडलाइन बनाई है, मतलब एक गाइडलाइंस बनाई है। ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने अभी तक कि इन पे कोई काम कर सकते हैं, है ना, कि हर एक पर बाउंडेशन नहीं है, ऐसे लो बाउंडेशन नहीं है कि ये सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो रोड चौराहे पे अभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं प्राइवेट, और वो Hmm. कोचिंग चलती रहेंगी अभी भी। और तीसरा फिर वो डेमो स्कूलिंग वाला जो था उस पे आप बोल सकते हो गवर्नमेंट की जो बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन रिलेटेड, इनको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि वो पैसे तो ले लेते हैं Hmm. और वो क्वालिटी नहीं दे पाते, ऐसा आप देख सकते हो, इसी काम बीएड में भी हो रहा है आजकल, वो आजकल क्या बहुत Yes. पहले से ही हो रहा है, तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हो। और फिर जो लास्ट पेरेंट Yes. इन्वॉल्वमेंट था उसमें आपसे एक सोच लो, अगर वैसे तो ये जूनियर स्कूल क्लास टीचर्स के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, अगर आपको कोई एक्टिविटी याद आती है तो आप इसको कोई हो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इसमें काम कर सकते हो, तो बस बाकी ठीक ठाक करते हो। Thank you. Thank you. या